Good evening and welcome to My Sakhi, the CSR initiative of Jackson Pal Pharma. आज का एजुकेशनल सेशन है बोन हेल्थ पर। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहें इवन ड्यूरिंग मेनोपॉज। और आज के एक्सपर्ट्स इसी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। दे विल बी प्रोवाइडिंग अस विद प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट बोन लॉस। So we cannot afford to ignore bone health. And we have experts, menopause specialists today with us, Dr. Ragini Agarwal from Gurugram and Dr. Beena Tandon from Lucknow. So today's session is courtesy MEMUP. MEMUP is a menopausal hormone therapy by Nari Division of Jackson Park. We welcome and thank all those who have joined us today as participants. To make today's session more interactive, please keep your questions ready or type in the chat box. So this program is in continuation with our ongoing web series, Menopause Dialogues, which is led by Dr. Ragini Agarwal from Gurugram, Haryana. She is in dialogue with Dr. Beena Tandon from Lucknow today. This web series is a part of Jackson Pal's ongoing CSR initiatives to raise awareness and to promote better health management of women. We welcome and express our gratitude to the experts today. We have with us Dr. Ragini Agarwal from Gurugram. She is well known to most of us who have been with this webinar series for last 10 times now. Dr. Ragini Agarwal from Gurugram, she is a well-known gynecologist and a menopause specialist who specializes in female sexual health. She is an accomplished aesthetic, functional, and urogyne surgeon. She is director of AA Derma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram. She is the incoming Secretary General of Indian Menopause Society. She holds so many prestigious posts at various doctor forums. Along with her today is Dr. Beena Tandon. Dr. Beena Tandon is director and consultant at Krishna Lok Hospital in Lucknow. Her area of special interest is adolescent health and midlife health issues of women. She recently secured first rank in the All India Exam of Menopause Practitioners, which is CIMP. She holds membership of all the National Gynae Doctor Forums and has led the post of Vice President of Lucknow Obs Gynae Society and many more such posts. We welcome to both the experts, Dr. Ragini ma'am and Dr. Beena Tandon. Over to you now to begin the session. Thank you, Deepika. Thank you for your kind introduction. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बोन हेल्थ के बारे में। हम सभी को मालूम है, उम्र के साथ बोन्स यानी हमारी हड्डियां मजबूत बंद हो जाती हैं, बल्कि झड़ने लगती हैं। एक ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, और यही नहीं, बिना सोचे समझे फ्रैक्चर भी हो जाता है, हाइट कम होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस उम्र में अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। और ये सब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हैं डॉक्टर बीना टंडन लखनऊ से। अभी अगर आपने देखा हो, हम अपने इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट देश के अलग अलग कोने से आए, जिससे कि हमें ये भी एक ढंग से मालूम हो सके कि कौन सी समस्या देश के किस पार्ट में ज्यादा है। वेलकम बीना जी। थैंक यू रागी जी।
ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल ग्लोबली जो है इससे प्रभावित रहते हैं, और ये इंडिया में सब कंपेरेटिवली फॉरेन कंट्री की जल्दी होने लगती है। और जो सबसे इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि फ्रैक्चर की, हड्डियां टूटने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि महिलाओं में ज्यादा है और पुरुषों में कम है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि महिलाओं का जो शरीर है वो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है। ईस्ट्रोजन महिलाओं का मेन हार्मोन है, और जब मीनोपॉज में उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर के हर अंग में, हर प्रक्रिया में ईस्ट्रोजन की कमी एक बहुत ही डिजास्टर की तरह आती है, और वो हड्डियों पर भी असर करती है। 65 के बाद 50% महिलाओं में और पुरुष में सिर्फ 20%। और जो हड्डी झरने का पहला स्टेप होता है, जब हड्डी कमजोर होनी शुरू होती है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस नहीं ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, वो जो है वो भी उम्र के साथ बढ़ती जाती है, और 40 से 65 होते होते वो 40% से 80% हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक फ्रैक्चर हो गया तो ये समझिए कि आपके फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। डॉक्टर बीना जी, आप ये बताएंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है, और जो ये फ्रैक्चर होते हैं, चूंकि बोन फ्रेजाइल होती है इसलिए हम उन्हें फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर कहते हैं, तो इनको हम कैसे इनके बारे में बात कर सकते हैं। और ये बोन पोरस यानी छेद छेद जैसी हो जाती है, यानी इसके अंदर मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून रागनी जी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि अभी जो आपने कवर किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ही गंभीर है, तो ये वाकई में एक चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि दिन दूने रात चौगने ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है, तो इसलिए जो वृद्ध पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है, उनका नंबर बढ़ रहा है। एक तो पूरी जो दुनिया है, ग्लोब जो है, वो पूरा ग्लोब ही एज कर रहा है। इसके अलावा महिलाओं में, जैसे अभी आपने कहा कि मेनोपॉज की जो है 48 से 50 के बीच में उम्र हो जाती है, इनकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। 70 साल से अब बढ़ के 2050 में ये 77 तक पहुंच जाएगी। तो उम्र का करीब 1/3 भाग जो है ये ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट स्टेट में गुजारेंगी। और हम सब जानते हैं कि जब ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट होता है तो बोन लॉस की जो दर है, रेट है, वो बहुत तेज हो जाती है। एक और कारण जो हमें समझ में आता है वो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, अब वो बोन फ्रेंडली नहीं रह गया है। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस केसेस हमको बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, और इससे जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है उसकी रेट भी बढ़ गई है। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के रेट्स में ऑस्टियोपोरोसिस नंबर 1 हो जाएगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को पछाड़ देगी। तो तो इसलिए ये बहुत चिंता का कारण है और एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है पब्लिक में, जो कि सबको नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आपने आज इस फोरम पर टॉपिक स्टार्ट किया है। थैंक यू बीना जी। जी, अब बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इसे हम सीधे शब्दों में कहेंगे कि ये हड्डियों की वो भीषण बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, या हम ऐसा कहें कि हड्डियां जो है ये खोखली होने लगती हैं। हड्डियां बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनती हैं, एक तो मिनरल जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, और दूसरा प्रोटीन जैसे कोलेजन। तो जब ये मिनरल किसी भी कारण से जमा होना कम हो जाता है या कोलेजन डैमेज हो जाता है, तो हड्डी का घनत्व भी कम हो जाता है, और उसका आकार, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर जिसे हम कहेंगे, वो भी डिटोरिएट हो जाता है, हड्डी कमजोर हो जाती है। तो एक हड्डी जिसका मास भी कम है, जिसकी स्ट्रेंथ भी कम है, वो वीक हो गई है,
वो आसानी से फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, और इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर क्या है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जब कोई हड्डी नॉर्मली किसी भी तरह से टूटती नहीं, जब तक कि उसके ऊपर जो आघात है या प्रेशर लगाया जाए वो बहुत ज्यादा ना हो, तब तक वो एक नॉर्मल बोन नहीं टूटती है। लेकिन एक कमजोर बोन, जिसमें मिनरल भी कम है, जिसमें कोलेजन भी कम है, ऐसी बोन जो फ्रेजाइल हो चुकी है, ये मिनिमम ट्रॉमा से टूट जाती है। कभी कभी तो डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि कोई एक्सटर्नल एविडेंस भी नहीं होता है ट्रॉमा का, जैसे फिसल गए और कूल्हे की हड्डी टूट गई, या खड़े खड़े गिर गए और स्टैंडिंग हाइट से ही गिर गए और उससे फ्रैक्चर हो गया। हमने कई ओल्ड पेशेंट्स में देखा है जिसमें बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है कि जरा सा खांसी, सीवियर बाउट्स ऑफ कफ हुआ और उनकी पसलियां चटक गई। तो ये सब फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स के ही उदाहरण हैं। इसमें ऊपर का चित्र अगर आप सब देखें तो आप अप्रिशिएट करेंगी कि इसमें जो स्पेसेस हैं वो छोटे हैं और कम हैं, और उनके बीच में जो स्ट्रैंड्स हैं वो थिक हैं, बहुत ज्यादा वाइट है, शेप भी ठीक ही लग रहा है। तो ये एक नॉर्मल हड्डी है, इसमें मिनरल भी ठीक है और इसका कोलेजन आर्किटेक्चर जो अंदर का है वो भी ठीक है। नीचे वाला जो चित्र है उसमें देखिए ये स्पेसेस बड़े हो गए हैं, इनके बीच में जो स्ट्रैंड्स थे वो पतले हो गए हैं, उतने थिक और वाइट भी नहीं है, कहीं कहीं टूट भी गए हैं। ये एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन है और कमजोर बोन है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया खड़े खड़े स्टैंडिंग हाइट से गिर गए और फ्रैक्चर हो गया, तो ये सब जो है ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर है। आमतौर पर कोई भी हड्डी टूट सकती है डॉक्टर, ये स्पाइन की भी टूट सकती है, कूल्हे की भी टूट सकती है, रिस्ट की भी टूट सकती है, हाथ पैर की हड्डी भी टूट सकती है, पेल्विस की, पसलियां, कोई भी हड्डी टूट सकती है। यहाँ ठीक है। मुद्दे की बात ये है डॉक्टर कि एक बार अगर एक हड्डी टूटने लगती है तो उसके दोबारा टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अभी आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी अगर टूटती है तो दोबारा रीढ़ की हड्डी टूटने के जो चांसेस वो 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं, और कूल्हे की हड्डी टूटने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने बोन हेल्थ पे ध्यान दें और फ्रैक्चर्स को अवॉइड करें। हाँ, तो बीना जी आपने जो लोगों को बताया बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में लोगों को ये एक क्लियरिटी आ रही है कि ये बुढ़ापे में, बड़ी उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी, जो आपका पीक बोन मास होता है, यानी बोन कब तक आपकी बढ़ती है, 30 साल के पहले पे आपकी हड्डियां मजबूत, हड्डियां की पूरी मजबूती आ चुकी होती है। उसके बाद तो हड्डियां झरनी झरनी होती है। तो उसको एक बैंक बैलेंस की तरह आप समझो कि अगर आपने अपने बैंक में ज्यादा पैसे इकट्ठे किए हैं तो आप बुढ़ापे में आराम से गुजारा कर सकते हो, आप उसमें जी से निकालते रहो, आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहो। ऐसा जी ही आपकी हड्डी के साथ है। लेकिन आजकल क्या है, हमारे एडोलसेंट बच्चे जो हैं कोक पीते रहेंगे खाने के साथ। कोक अपने आप में एक जो ये जितनी सॉफ्ट ड्रिंक है ये हड्डियों को जलाने में बहुत ही सहायक होते हैं, और जी जी हड्डियां उन पे जुड़नी नहीं पड़ती। वीडियो के चलते बैठे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करनी। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपकी हड्डियां जब यंग एज में मजबूत नहीं होंगी तो बड़ी उम्र में ज्यादा मुश्किल होगी। और बीना जी ने जैसे आपको बताया, ये बहुत जानने वाली बात है, ये एक साइलेंट किलर है। कभी कभी कोई लक्षण नहीं होता है, बैठे बैठे भी हड्डी टूट जाती, तब मालूम पड़ता अरे भाई ये तो ऑस्टियोपेरोसिस हो गया है। और डॉक्टर एक इसमें क्या है, जी जी बताइए। पीक बोन मास से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जितने भी श्रोता हैं, कि हड्डियों का घनत्व कैसे होता है और कम कैसे होता है। तो इसके लिए एक स्लाइड पे हम थोड़ा सा अगर जाएं तो इसके पहले वाली में, तो हम्म। हड्डियां हमारे शरीर का एक बहुत ही एक्टिव ऑर्गन है। इसमें जिंदगी भर काम होता रहता है, बोन की ग्रोथ होती है, कंसोलिडेशन होता है, और फिर रीमॉडलिंग होती रहती है। और इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक वो सेल्स होते हैं जो हड्डियों को बनाने का काम करते हैं, और एक वो सेल्स होते हैं जो पुरानी हड्डियों को हटाने का काम करते हैं। तो नॉर्मली एक पॉजिटिव बैलेंस बना रहता है,
जितनी हड्डी गल गई उतनी ही नई हड्डी बन जाती है। लेकिन अगर किसी कारणों की वजह से ये बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब धीरे धीरे हड्डियां गलती ज्यादा है और बनती कम है, और इसी को हम कहते हैं कि ये बोन में अब ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। ये आपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। तो इसमें जब हम देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं, दर्द हो सकता है और कई बार ऐसा दर्द होता है जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़ी उम्र की औरतें धीरे धीरे झुकती चली जा रही हैं और उनको जी खून निकलना है, वो अपने आप में एक इंडिकेशन है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। तो जी। आप बीना जी, आप ये बताएंगे कि ये कूल्हे के जो फ्रैक्चर होते हैं उससे क्या क्या परिणाम जो हैं हो जाते हैं, क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है? अभी तक हमने जितने भी फ्रैक्चर्स के बारे में जिक्र किया, उनमें सबसे खतरनाक और बुरा फ्रैक्चर जो है किसी महिला के लिए, वो हिप फ्रैक्चर है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है। इसमें 20% लोग जो है वो 1 साल में ही मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 30% ऐसे जो हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाते हैं। 40% इतने ऐसे होते हैं जो अपने आप चल नहीं सकते, और 80% ऐसे लोग हैं जो डेली की जो उनकी एक्टिविटी है उसका एक भी काम खुद नहीं कर पाते। तो ये एक तरीके का लोड है, फिजिकल लोड है, साइकोलॉजिकल लोड है, फाइनेंशियल लोड है उस व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए और समाज के लिए। तो सबसे दुष्परिणाम जो होते हैं वो कूल्हे के या हिप के फ्रैक्चर के होते हैं। तो इसमें जो हाई रिस्क कैटेगरी होती है वो आमतौर पे 65 साल से ऊपर की औरतें और 70 साल से ऊपर के पुरुष होते हैं। तो बीना जी, और क्या क्या हाई रिस्क फैक्टर हम देखते हैं कि किनमें हमें ये लगता है संभावना कि इनको जो है ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं? डॉक्टर, हम अपने इन कारणों को 2 श्रेणी में बांट देते हैं। एक तो ग्रुप वो है जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, मतलब इस रिस्क फैक्टर पे आप कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा ग्रुप है जो मॉडिफाइबल है। अगर हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे काम करते हैं तो हम या तो ऑस्टियोपोरोसिस को होने नहीं देंगे, या उसका होना डिले कर देंगे, या अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है तो उसकी सीवियरिटी को हम रिवर्स या घटा भी सकते हैं। तो जो फैक्टर जो है वो नॉन मॉडिफाइबल है, उसमें जैसे आपने पहला बहुत सही कहा कि बढ़ती हुई उम्र, 65 साल के ऊपर स्त्रियों में, 70 साल के ऊपर पुरुषों में। इसके अलावा महिला होना ही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और उसमें मेनोपॉज का होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि बदला नहीं जा सकता। फिर अगर परिवार में कोई फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर की हिस्ट्री, जैसे पेरेंट्स में, खासकर माता में अगर हिप फ्रैक्चर की हिस्ट्री है, या उस महिला में जो आपके पास आई है उसमें कोई फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर की हिस्ट्री मिलती है, या उसका जो बोन मास है वो ही बहुत कम है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बदले नहीं जा सकते, नॉन मॉडिफाइबल। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो मॉडिफाइबल हैं। अगली स्लाइड पे, कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है लाइफस्टाइल का डिटोरिएट होना। लाइफस्टाइल हमारा बोन फ्रेंडली नहीं रह गया है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी तो पूरे विश्व में है, और बच्चे से लेके जवान लोगों में, बुजुर्गों में, सब में आपको कैल्शियम और विटामिन डी कम ही मिलेगा। इसके अलावा अगर हम प्रोटीन बहुत ज्यादा या बहुत कम लेते हैं तो कैल्शियम का जो लेवल है वो अफेक्ट होता है। नमक बहुत ज्यादा खाना, 1 चम्मच से ज्यादा लेना, 5 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम के लेवल्स को कम करता है। हमारी जो नानी दादियां हुआ करती थी वो कहती थी ज्यादा नमक ना खाओ, हड्डियां गल जाएंगी। तब उस समय तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अब हमको समझ में आने लगा है। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि अल्कोहल वगैरह का भी बहुत लोग सेवन करने लगे हैं, तो इसको मॉडरेशन में लेना चाहिए। स्मोकिंग 1 पैकेट से ऊपर हड्डियों को बिल्कुल गला देगी, स्मोकिंग तो ना करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बढ़ गई, जैसे डायबिटीज है। तो डायबिटीज प्लस जो इसके लिए दवाइयां ली जाती है वो दोनों ही हड्डियों के लिए हानिकारक है। थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और उसमें दिए जाने वाले स्टेरॉयड
ओरल स्टेरॉयड अगर 3 मंथ से ज्यादा लिए जाए तो हड्डियों का बिल्कुल ऐसा हाल हो जाता है कि वो बिल्कुल पोरस सी हो जाती है। लिवर, किडनी और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के भी जो इंसिडेंस है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, और इसके फलस्वरूप ऐसा होता है कि कैल्शियम, विटामिन डी दोनों ही के लेवल कम हो जाते हैं, विच आर हार्मफुल फॉर आवर बोन्स। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप लोगों को एक बात जी मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाना चाहूंगी कि जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है उसके पूरे शरीर में चेंज आता है। जो जी आपकी मसल्स हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं, उसको जी। हम सार्कोपीनिया कहते हैं। हम्म, मसल्स का क्वालिटी ही चेंज हो जाता है, वो उसके अंदर क्या लचीलापन, मजबूती सब कम हो जाती है। बोन और मसल एक दूसरे से अलग नहीं है, वो साथ ही साथ चलते हैं। तो एक तरफ आपकी हड्डियां कमजोर, दूसरी तरफ आपकी मसल कमजोर, तो चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाना या उठ नहीं पाना, ये सारी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा असर करती हैं। इसीलिए बार बार जब भी हम लोग मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये जरूर डिस्कशन आता है, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। जी और दूसरा जो है हम जो डिस्कस करते हैं कि अपने डाइट का ध्यान रखो, क्योंकि जी। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर की एक अवस्था है। अवस्था। जी उस अवस्था के जो कमियां हैं उनको हमें देखना है। और एक चीज यहाँ हम ये बताएंगे कि जैसे कि हम लोग कैल्शियम और विटामिन डी कहते हैं, तो आप राइट लेफ्ट हर हफ्ते एक विटामिन डी का सैशे पेट के अंदर कर लेते हैं, वो भी कई बार आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जी जी विटामिन डी का मात्रा अगर 100 के ऊपर जाता है तो वो उससे किडनी भी बैठ सकती है। तो विटामिन डी ऐसे नहीं खाना चाहिए, उसको बीच बीच में टेस्ट करा के जी समझना भी चाहिए। और जैसे कि इन्होंने आपको बताया अभी डॉक्टर साहब ने थायराइड के बारे में, तो जब हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसका मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है। तो अगर आप जब जब यंग हैं और ज्यादा हाई डोज में थायराइड खा रहे हैं, तो इस उम्र में हम इतना टाइट नहीं रखते हैं टीएसएच लेवल को कि हमें 5 से कम रखना है, बल्कि इस उम्र में अगर 6-7 भी है, 8 भी है और बढ़ जी। नहीं रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कोई तो दवा नहीं हम दें। उसको थायराइड को इतना टाइट नहीं रखेंगे। इन हड्डियों को नापने के लिए हमारे पास क्या क्या मोडेलिटीज हैं, इसके बारे में बीना जी आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे रिलायबल मेथड जो हड्डियों का घनत्व नापने के लिए है, वो है डेक्सा, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। इसमें हम डिफरेंट साइट्स पर बोन की जांच करते हैं, उनका घनापन निकालते हैं और एक स्कोर निकालते हैं जिसे हम टी स्कोर कहते हैं। इस स्कोर में हम देख रहे हैं कि अगर ये स्कोर किसी का -1 से ज्यादा है तो वो जो हड्डी है उसकी नॉर्मल है। अगर उसका टी स्कोर जो है -1 से -2.5 के बीच में आता है तो उसका जो बोन मास है वो लो है या वो ऑस्टियोपेनिक है। अगर उसका टी स्कोर -2.5 से नीचे है तो इस पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। इसके आगे बढ़े तो अगर उस पेशेंट का टी स्कोर -2.5 से नीचे है और उसमें एक फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी हो चुका है तो इस पेशेंट को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। जितना -2.5 से नीचे टी स्कोर जाता है उतना समझ लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सीवियर है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ मेंशन करेंगे कि हर एक कमजोर हड्डी टूट नहीं जाती। हमें ये भी देखना है कि किसी भी पेशेंट में जिसमें हमको लो बोन मास मिला है या ऑस्टियोपोरोसिस मिला है, उसके फ्रैक्चर होने की संभावना भविष्य में कितनी है। इसके लिए एक टूल है जिसे हम फ्रैक्ट स्कोर कहते हैं। ये ऑनलाइन टूल है और कंट्री स्पेसिफिक है। इसमें कुछ डेटा है, अगर हम एंटर करें तो कंप्यूटराइज तरीके से हमको हमारा फ्रैक्ट स्कोर पता चल जाता है कि भविष्य में 10 साल में हमको फ्रैक्चर होने की संभावना कितनी है। तो ये हमारे मरीज के इलाज में हमको मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फ्रैक्ट स्कोर 3% से ज्यादा आया तो इस पेशेंट में हिप फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, या अगर 20% से ज्यादा आया
तो इसका मतलब कि किसी भी मेजर बोन का फ्रैक्चर होने की संभावना इसमें अधिक है और हमें इसके बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, तो जैसा बीना जी ने बताया, जो आजकल रिकमेंडेशन है कि 65 साल की उम्र के ऊपर हर एक जी लेडी का एक बार बोन डेक्सा होना चाहिए, लेकिन बोन जी डेक्सा हर शहर में एक तो मौजूद नहीं है और दूसरा थोड़ा जी महंगा टेस्ट भी होता है। तो ये जी जो फ्रैक्स स्कोर है, इसके द्वारा आपका डॉक्टर यह समझ सकता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर जी आप हाई कैटेगरी में हो, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो देखिए बोन डेक्सा तो आपको करा करके अपना इलाज शुरू करना ही करना पड़ेगा, जी क्योंकि फ्रैक्चर होने के बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है, जो कि हम बोन डेक्सा के लिए देते हैं। तो बीना जी, इन्फेक्शनों से जी हम कैसे बच सकते हैं? क्या क्या चीजें हम अपने डेली रूटीन में डालें जिससे कि हमारे हड्डियों का घनत्व बढ़े या हड्डियां हमारी मजबूत रह सके? देखिए, किसी भी फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारी जो बोन है उनका घनापन बना रहे, और दूसरा हम उस पेशेंट को एडवाइस दें कि वो गिरे ना, फॉल प्रिवेंशन के बारे में भी उससे बात करें। अब बोन का जो घनत्व है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि 30 साल तक हमको अपनी उम्र का जो घनापन है उसको बढ़ाना है, जिससे हमें पीक बोन मास हम अचीव कर लें। पीक बोन मास अचीव करने के बाद ये 30 साल के आगे बोन लॉस शुरू हो जाता है, घनत्व आगे नहीं बढ़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जमा ज्यादा करें और खर्च कम करें। दूसरा, कैल्शियम सही मात्रा में लें और सही तरीके का कैल्शियम लें। और जब हम कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके साथ कोई ऐसी क्रिया ना हो खाने पीने में जो उसके एब्जॉर्प्शन को कम करती है। जैसे विटामिन डी का कमी नहीं होनी चाहिए, उचित मात्रा में विटामिन डी हो। हमको व्यायाम, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है, क्योंकि ये बोन और मसल दोनों को लाभ देती है, जैसा अभी आपने बताया। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, अल्कोहल मॉडरेशन में करें, और दवाइयां जैसे अभी आपने बताया उनका सेवन भी ध्यान से करें। यहाँ अगर समय तो एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, इफ यू अलाउ। हाँ जी, दवाइयों के बिल्कुल। बारे में दवाइयों के बारे में करीब 4-5 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई जिसको हाइपोथायराइड मैंने डायग्नोज किया और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। अभी कुछ दिन पहले वो मुझे मिली, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा, आपने मुझे डॉक्टर के पास भेजा था, मैं वही पर्चे की दवा मंगा मंगा के खा रही थी, और अब ये फ्रैक्चर हो गया, बाकी मैं ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं। तो ये देखिए कि हमारी जो पब्लिक है वो कितनी इनोसेंट है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि जो दवा वो एक पर्चा बना के अपने पास रख लिया था और उसी को मंगा के खाती थी, उसका कोई चेकअप नहीं कराया, उसकी कोई लेवल नहीं कराई। तो ये दवा हमें समझना चाहिए कि ये डबल एजेड स्वॉर्ड होती है, एक तरफ फायदा कर रही है तो दूसरी तरफ वो उसकी हड्डियों को गला रही थी। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। फॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉल जी होने से, अगर हम फॉल से बचते हैं तो हमारी जो कमजोर हड्डियां हैं वो टूटने से बच जाती हैं और हमें कई जी किस्म के फ्रैक्चर से बताती हैं। तो इसके हम्म लिए ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हम हाथ और पाँव की मजबूती के लिए व्यायाम करें जी और कोई स्टिक लेके चलें। एक बात यहाँ हम्म पे मैं बताना चाहूंगी, एक उम्र के बाद ना अपने कपड़े खड़े खड़े ना पहने। कई बार लोगों को खास बैठना। करके लोअर्स चेंज करने में, फटाफट करने में, तो बैलेंस भी इस उम्र में थोड़ा कम हो जाता है। और अगर आप हम्म थोड़ा सा भी लड़खड़ा गए तो आपका फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। सीढ़ियों जी में रेलिंग रखें, टॉयलेट में रेलिंग रखें, और टॉयलेट को सूखा रखें। ये मतलब हमें खुद अपने लिए और अपने परिवार में जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, हमारे दादी नानी माएँ, उनके लिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो किस ढंग से अपने इस अवस्था में, अपनी कमजोरी अवस्था में भी इन फॉल से खास करके वो बच सकें। कमरे में सामान नहीं फैला होना चाहिए। और ज्यादा अगर बुजुर्ग महिला है जो लगता है कि उसका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ गया है, तो उनको बोले वॉकर लेके चलें, जिससे कि वो ज्यादा बेहतर हो सके।
तो ये बताइए, ये तो हम कर डॉक्टर लिया। यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जी, हम बताइए। एक दो पॉइंट फॉल प्रिवेंशन में अगर सीनियर्स के लिए ऐड करना चाहें तो कैन वी बताएं सी बताएं। द लास्ट स्लाइड। अभी वो हम बाद में हमें, करेंगे, पहले हम दवाइयों पे थोड़ा बात कर लें, अच्छा जी ठीक फिर है। से फॉल पे बात करेंगे। जी जी जी। हाँ दवाइयाँ जो हैं ये बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक जी। वो जो हड्डियों को गलाने से रोकती हैं जिसको हम एंटी रिजॉर्प्टिव कहते हैं, जैसे बिसफॉस्फोनेट्स हैं, जिन्हें इस कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी है जो नई हड्डी बनाने में हेल्प करती है, बोन फॉर्मिंग एजेंट, जैसे टेरिपाटाइड। एक हम मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी के बारे में भी यहाँ बात करेंगे कि अगर कोई महिला की उम्र जो है वो 60 साल से कम है, या अगर किसी में प्री मेच्योर मेनोपॉज हो चुका है, तो इन लोगों में भी हम हार्मोन थेरेपी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये दोहरा फायदा देंगी। एक तो बोन को गलने से रोकेंगे, और दूसरा उसके अंदर जो मेनोपॉज के लक्षण हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनमें भी उसको रिलीफ देके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। तो बीना जी, कुछ आप एमएसटी के बारे में बताना चाहेंगी, किस किस प्रकार की एमएसटी हमारे पास मौजूद है, अभी हाल में और ही क्या हमें मेनोपॉज थेरेपी। जी जी, अभी हाँ बताएं। हाल में ही एक ड्रग हमारी यहाँ लॉन्च हुई है, और ये कॉम्बिनेशन है हार्मोन्स का, जिसमें कि लो डोज में ईस्ट्राडियोल है, और 100 मिलीग्राम उसके साथ माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये ईस्ट्रोजन की वजह से हड्डियों को लाभ मिलेगा, सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ईस्ट्रोजन के जो अनवांटेड इफेक्ट्स हैं यूट्रस पे, उससे हमें बचा के रखेगा। तो उम्मीद है अगर ये ड्रग जो है महिलाएं ले तो उन्हें दोहरा लाभ होगा। यहाँ पर एमएसटी में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एमएसटी जो है कोई नुकसान देने वाली चीज नहीं है, लेकिन जी वो एलिक्सर ऑफ यूथ भी नहीं है कि आपने एक बार पर्ची लिखवा ली तो आप अपना खाते ही चले जा रहे हैं। ये हमेशा निगरानी में खाई जाती है, जरूरत होती है तभी देते हैं, लो डोज में देते हैं, बहुत कम समय के लिए देते हैं। लेकिन अगर कोई महिला 50 साल से उसकी उम्र कम है, क्योंकि 50 साल को हम मान के चलते हैं तब तक उसके अंदर अपने नेचुरल हार्मोन होते हैं। जी खास करके 40-42 साल में आपकी ओवरी निकल गई, या आजकल एक नई बीमारी हो गई है, ओवरी अंदर ही अंदर सूख जाती है, जिसको हम प्री मेच्योर मीनोपॉज हो जाता है, उसको प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। कैंसर बहुत बढ़ रहा है, यंग लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर के ट्रीटमेंट से भी लोगों को एक मीनोपॉज जैसे लक्षण आ जाते हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, अगर ये 40-42 साल की उम्र में उनका हार्मोन बॉडी खत्म कर देने से उनकी हड्डियों के होने का दर बहुत तेजी से बढ़ता है। यही नहीं, उनको हार्ट पे असर, उनका मीनोपॉजल प्रॉब्लम, उनके सेक्सुअल हेल्थ, सब पे असर पड़ता है। ये वह समय है जब आपको एमएसटी की जरूरत है, और अगर उस समय आप एमएसटी नहीं लेते हैं तो वह नुकसान ज्यादा करती है। यही नहीं, एमएसटी की ड्रग्स वो चेंज हो चुकी हैं जो पहले दी जाती थी। आज हम नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन और नेचुरल ईस्ट्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनसे जी कि सिंथेटिक वाले नुकसान भी कम है। और साथ में जो इन्होंने जैसे बताया बीना जी ने, 60 वर्ष से कम उम्र, तो इसको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। यानी कि आपका मीनोपॉज हो गया, मीनोपॉज होने के 10 साल तक हम अगर एमएसटी देते हैं 60 साल की उम्र के नीचे, तो नुकसान नहीं होता है। हाँ, उसके बाद एमएसटी जो है उसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। तो जी। कैल्शियम की क्या रिक्वायरमेंट होती है बीना जी? 50 साल के ऊपर 70 साल तक जो कैल्शियम हमें चाहिए वो 1000 से 1200 मिलीग्राम तक हमको लेना चाहिए। कोशिश हमें करनी चाहिए डॉक्टर कि ये हम जो अपना रिक्वायरमेंट है ये डाइटरी सोर्सेज से ही लें, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाता है और साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। तो अगर हम एक कैल्शियम डायरी मेंटेन करते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो डाइट से लिया उसमें थोड़ी कमी रह गई और हमारे डेली रिक्वायरमेंट अभी भी ज्यादा है, कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं कि कैल्शियम के क्या क्या, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, और कितना आप खाएं तो आपके अंदर जो है कैल्शियम जा सकता है। देखिए, एक बहुत ही
बढ़िया सी बात आप इसमें पढ़े, 200 ग्राम भिंडी, भिंडी तो बेचारी ऐसी सी सब्जी कहलाती है, उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है। इवन उसमें भी क्या भिंडी जो है अगर आप अपने खाने में ऐड कर रहे हो, आपको अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम मिल जा रहा है। और यही नहीं, डिफरेंट टाइप के जो पत्ते हैं उनसे, साथ में दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन आजकल थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कशन रहता है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो बहुत किस्म का हमारा अदरवाइज ऑल्सो खाने में, चाहे वो रागी का आटा है, राजगीर यानी चौलाई का आटा है, इन सब के आटों को भी हम मिक्स करके और बारी बारी रोटेट करके खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा गेहूं ही खाएं, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। और रोटी नहीं, इनसे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बन सकते हैं। और हम अगर कम उम्र से ही इनको खाना शुरू करते हैं तो हम अपने बॉडी में इनसे काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नट्स और सीड्स और ड्राई फ्रूट भी जो है हमारे को अपने खाने में रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। सो डॉक्टर जी, जी बीना जी। जी इसमें जैसे अगर हम कैल्शियम को लेते हैं किसी सिट्रस फ्रूट के साथ, तब भी उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो हमें अपने खाने में इतनी सारी वैरायटी अभी आपने देखी, थोड़ा थोड़ा समय से लेना चाहिए और अपनी जो यंगर जनरेशन है उसको भी एजुकेट करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो कम से कम ले, और जो ये खाने में आइटम थे इनमें से ले, तभी वो अपना पीक बोन मास अचीव कर पाएंगे। क्या क्या चीजें हैं जिन जो इसका एब्जॉर्प्शन कम करती हैं? ये तो इनमें से तो मिल गया, लेकिन कम किन चीजों से होता है उसके बारे में कुछ बताइए। कम सबसे पहले हमें मालूम है कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन में डिपोजिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर उसकी मात्रा कम होगी, कैल्शियम का लेवल कम होगा। अगर हम बहुत ज्यादा चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, तो भी बोन हमारी जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, कैल्शियम लेवल क्योंकि इनसे कम हो जाता है। बहुत ज्यादा नमक लेने से भी कैल्शियम कम हो जाता है हमारे शरीर में। बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मेनोपॉज पे हम रिकमेंड करते हैं कि 1 से 1.2 मिलीग्राम पर ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होना चाहिए। कई बार लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, वो दोनों ही सूरत में हार्मफुल है। फिर बहुत ज्यादा फाइबर हो खाने में, फाइटेट्स हो, ऑक्जेलेट्स हो, तो ये भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम पेशेंट में देखते हैं कि उसको अगर आयरन और भी जिंक वगैरह कई मिनरल्स उसको प्रिस्क्राइब करे गए हैं, तो वो कहता है कि चलो एक ही बार में सब खा लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कैल्शियम अगर इन सबके साथ लेंगे तो भी एब्जॉर्प्शन कम होगा। और फिर बढ़ती हुई उम्र के तो ये सारी ही प्रॉब्लम है, चाहे कैल्शियम हो चाहे विटामिन डी हो। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है। तो विटामिन डी किस ढंग से असर करता है कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने में? विटामिन डी के क्या क्या फायदे हैं? विटामिन डी एक सिर्फ विटामिन नहीं रह गया, इसको हम सनशाइन हार्मोन कहेंगे। क्योंकि ये एक तो जैसे अभी हमने बताया कि बावल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, और फिर इनको बोन में डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। इस तरह बोन की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट के लिए, नसों के लिए, स्किन के लिए, मस्तिष्क के लिए, सबके लिए जरूरी है। सोराइसिस वगैरह जो बीमारी है उससे विटामिन डी दिया जाता है, क्रीम्स होती हैं उसकी, और टैबलेट भी होती है, सैशे भी होते हैं। ब्रेन में डिप्रेशन आदि के लिए भी ये हेल्पफुल है। कैंसर से रोकथाम में भी हेल्पफुल है, और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो विटामिन डी जो है वो सनशाइन हार्मोन है और बहुत ही असेंशियल हार्मोन है, हम तो कहेंगे। तो विटामिन डी हालांकि सूरज की रोशनी से बन सकता है, लेकिन ये अभी ये पाया गया है कि क्योंकि हम लोग पूरे समय इंडोर में रहते हैं और बाहर भी अगर आप कपड़े उतार के बैठोगे तभी आप जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उम्र के साथ जो इसकी एब्जॉर्प्शन पावर है बॉडी में वो भी कम होने लगती है, उस लेवल तक आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। और हम लोग बाहर निकलते हैं तो अपने चेहरे को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं, वो सनस्क्रीन में भी ये कमी, इसलिए शायद विटामिन डी का वो ज्यादा बढ़ गया है।
तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए डॉक्टर कि हमको विटामिन डी जो है वो धूप से प्राप्त करना चाहिए, बाजार से कम। लेकिन अब देखा जाए तो वो एक बड़ा मुश्किल सा होगा कि इसके पास मॉर्निंग के समय में टाइम है कि वो बैठ करके आधा घंटा, चाय पीने का तो समय नहीं होता आज की भागती दौड़ती जिंदगी में। तो जी शायद एक जी ये बहुत बड़ा रीजन हो चुका है जिसके कारण हम विटामिन हाँ, डी का हमें आर्टिफिशियली कैप्सूल्स वगैरह लेना लेनी पड़ पड़ रही जाता है। लेकिन साथ साथ जी आप ये भी समझिए कई बार लीवर किडनी की बीमारी, आंतों की बीमारी, जहाँ एब्जॉर्प्शन गड़बड़ है वहां भी आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं जा पाता है। तो जी। बीना जी, विटामिन डी हमें कितना चाहिए? कैल्शियम तो आपने बताया 1000 से 1200 और एक बार में 500 से 50 ज्यादा साल नहीं के लेना चाहिए। ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट है 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट। एक दिन में 4000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर हम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा लेते हैं तो वील एंड अप विद द टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। तो हमें अपना जो ब्लड लेवल है वो 30 से 60 नैनोग्राम पर ml बनाए रखना चाहिए। 30 से कम होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, 60 से ऊपर, 100 से ऊपर चले जाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने बताया भी था कि पेशेंट खाना शुरू कर देते हैं, खाते रहते हैं, तो रेगुलरली इसका लेवल चेकअप कराते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस खा रहे हैं तो उसको मिठाई की तरह खा रहे हैं बगैर आप ये चेकअप कराए। देखिए, जैसे बीना जी ने आपको बताया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मरीज आता है कि हम हर संडे को एक 60 खा लेते हैं। 60,000 का एक सैशे खोल के मुंह में डाल देते हैं जी। ये तो हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस बना रखी है। साठ हम्म, हजार अगर आप हर हफ्ते में खा रहे हो तो आप सोचो कि आप रोज का रोज कितना खा रहे हो। विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है, इसीलिए इसके डिपो इंजेक्शन आते हैं कि जी। आपने एक बार 6 लाख का इंजेक्शन लगवा लिया, वो लंबे समय तक चला जाता है। तो इसलिए बीच बीच में विटामिन डी टेस्ट करा के ही लगवाना बेहतर रहता है। अभी आपने बीना जी एक बात करी थी प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर की, कि 40 साल के पहले भी लोगों को मीनोपॉज चला जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती चली जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है, ये एक बहुत नुकसानदेह चीज है जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। कि हम तो खुश हो जाते हैं 42 साल में हमारा मेंसेस चला गया यार, छुट्टी मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका शरीर के ऊपर एक बहुत ही गलत इफेक्ट होता है। उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा आप बताएं। देखिए जैसे अभी आपने कहा कि ये खुश होने की बात नहीं, ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये एक परेशानी का कारण है। नॉर्मली अगर किसी लेडी में 50 साल तक भी मेनोपॉज हो तो 40 साल से पहले मेनोपॉज हो जाना किसी भी स्त्री के लिए ठीक नहीं है। और ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए फैमिलियल है, मदर में सिस्टर में जल्दी हो गया, या मान लीजिए जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ कैंसर्स वगैरह का इलाज चला, कीमो चली, रेडिएशन चला, या कभी कोई ओवरी में इन्फेक्शन हुए उससे ओवरी सूख सी जाती हैं, कभी कोई सिस्ट या कोई ऐसा सर्जरी हुई जिसमें ओवरी का काफी भाग निकाल दिया गया तो ओवरीज जो है काम करना बंद कर देती हैं। तो क्रोमोसोम के कई डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें कि ओवरीज में फॉलिकल इतनी कम होती है कि एक उम्र के बाद खत्म ही हो जाती है। एक चीज और यहाँ मेंशन करूंगी कि आजकल इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा चलन हो गया है, ये भी हमारी ओवरीज को फॉलिकल से डिप्लीट कर देती है। तो ऐसे में ईस्ट्रोजन का एकदम से कम हो जाना किसी भी महिला को हानिकारक उसके प्रभाव डाल सकता है, जैसे खासकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और उसकी हड्डियों पर। ऐसा देखा गया है कि इन पेशेंट्स में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होती है, फ्रैक्चर्स बहुत सारे होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम कंपेयर करें और महिलाओं से तो इनकी मॉर्टेलिटी जो होती है वो 50% ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम जितनी जल्दी इन पेशेंट्स में हार्मोन देना शुरू करें, जिसे कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहेंगे इसमें, और उसको तब तक देते रहेंगे जब तक कि नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज ना हो जाए उस पॉपुलेशन की जिसमें वो स्त्री आती है। बहुत ही अच्छे ढंग से आज आपने सब चीजें लोगों को क्लियर की। मैं आपसे सिर्फ इतना सब लोगों को कहना चाहूंगी, अपने शरीर, जो आपका शरीर है वो आपका एक मंदिर है।
और उस मंदिर का जो ढांचा है वो आपकी हड्डियों पे टिका हुआ है। तो अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनी हड्डियों से प्यार करें। और अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी शुरू करी है तो अब शुरू कर दीजिए। सिर्फ खाली वॉकिंग से ही नहीं, इस उम्र में थोड़ी सी रेजिस्टेंट एक्सरसाइज भी जरूरी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज जो है एथलीट बनने चल दीजिए, या आप सोचिए कि हम तो जो है बस अब पूरी बॉडी डेवलप कर लेंगे, क्योंकि ये वजन उठाते ही आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। तो पहले अपनी देखभाल कराएं, अपनी हड्डियों का लेवल समझें, और सुपरविजन में धीरे धीरे बहुत हल्के वेट से 1 किलो आधा किलो के वेट से एक्सरसाइज करें। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, बहुत ही मोटा क्वेश्चन है जी। अब हम तो जिम तो जा नहीं सकते, या हम वेट भी नहीं खरीद सकते, तो क्या करें? तो देखिए, आपके सबके घर में पानी की बोतल होती है, आधा किलो पानी की बोतल लें, उसमें पानी डालें, आपका आधा किलो का वेट तैयार हो गया। थोड़ी सी मिट्टी लें, एक थैली में डालें, उस थैली को सिल लें, और उस थैली को अपने पैरों पे बांधें, और उसके साथ आप पैरों को ऊपर नीचे करें, आपका आधा से 1 किलो का वेट तैयार हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके अंदर करने की इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एक छोटी सी मशीन आती है एक्सरसाइज की, एक किस्म की वो साइकिल सी होती है, बहुत महंगी भी नहीं है, अमेजन पे मिलती है। उस पे आप बैठ के अपने पैर चला सकते हैं। हमारा अगला जो एपिसोड आ रहा है हड्डियों के बाद, हड्डियों की मजबूती, मसल्स की मजबूती, उस पे हम फिजियोथेरेपिस्ट को ला करके और आपको यही बताएंगे किस ढंग से अपने बदन की एक्सरसाइज को करके मीनोपॉज को अपने एक बहुत ही सुंदर समय, क्योंकि मेरी जानकारी में मैं ये कहती हूँ कि किसी भी महिला के लिए मीनोपॉज के बाद का जो दूसरा आपकी जिंदगी का दूसरा सत्र शुरू होता है, वो सबसे खूबसूरत सत्र होता है। और आपको इसमें अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए। आपने पूरी जिंदगी काम किया है, बच्चे संभाले, परिवार संभाले, अब थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, और साथ में कोई हॉबी जो आपने परिवार के साथ उसके काम में लग करके छोड़ दी, उसको तुरंत अपनाइए, जिससे कि आप खुश रह सकें। और अगर आपकी हड्डियां चल रही हैं तभी आप सेफ हैं, और जब आप सेफ हैं तभी आप आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं। अगर हम अपनी हड्डियों का ख्याल तो अच्छे से रखते हैं तो हम हमेशा फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 और इंडिपेंडेंट एट 80 रहेंगे, ये जो जो कि ब्यूटीफुल हमारी IMS का स्लोगन है। हाँ, जो ये ब्यूटीफुल स्लोगन आप लोग देख रहे हैं, मैं और बीना जी दोनों इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी के मेंबर हैं, और ये हमारा जो है टैग लाइन है, क्योंकि इंडियन मीनोपॉज सोसाइटी जो है करबद्ध है महिलाओं को एक बहुत ही खूबसूरत दूसरा पारी खेलने देने के लिए। सो जी। इन शब्दों के साथ हम इसको खत्म करते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस हों उनको बीना जी सॉल्व करेंगी। ओवर टू यू दीपिका। Thank you very much, Dr. Ragini Agarwal and Beena ma'am. It was a wonderful presentation and we learned so much from it. I'm sure next episode के लिए सभी लोग, जितने लोग आए हैं सभी लोग आएंगे और अपने साथ बहुत लोगों को लाएंगे, क्योंकि हड्डी और मसल को मजबूत करना तो सभी लोग चाहेंगे, और वो किस तरह हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगी वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर रागिनी, आपके इतनी ज्यादा मेहनत हम करके हमारा ये प्रोग्राम इतना सफल बनता जा रहा है। आज के हमारे लकी विनर्स अनाउंस करने का भी टाइम है मैम। सो रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 65, कोई भी 3 नंबर्स आप चूज करके बताएं मैम। तो एक 9, एक 32 और दूसरा 47। ये मैंने कुछ सोच के नंबर बोले हैं। अच्छा 9 नंबर के बाद आपकी आजकल मेंसेस आने का समय शुरू होना शुरू हो जाता है। 32 पे आप सेकेंड फेज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 35 के बाद आपका पेरीमेनोपॉज आ जाता है। 32 पे आपका रिप्रोडक्टिव ईयर जो है बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। और 47 हमारी इंडियन लेडीज का मीनोपॉज का समय है। एक नंबर और बता दें मैम। तो आप 9 से फिर आप 12 पे चले जाएं, क्योंकि 12 के बाद तो पक्का में पिवर्टी आई जाएगी। Congratulations to all the 4 winners here. Today we have 4 lucky winners drawn by the experts themselves. And before we move on to the question answer session, I'll take a minute and just brief you about our My Sakhi
which is this is a CSR initiative of Jackson Polk Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in women's health. We take up this initiative as part of our commitment to improving women's health across all stages, from adolescence to menopause. तो इस वेबसाइट में आपको सभी कुछ मिलेगा, from adolescence to menopause आप क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं उनके बारे में समझ सकते हैं. This website is an ongoing extension of ongoing CSR initiatives where we are promoting women's health and hygiene, and the company has already made many positive impact by building many sanitation facilities in Punjab, Haryana and Uttarakhand, as well as raising awareness about menstrual hygiene in गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स. तो गवर्नमेंट के गर्ल्स स्कूल में जाकर इस तरह से हम लोगों ने फिजिकली जाकर वहां पर इसी तरह से गर्ल्स को समझाया गया है कि हाउ दे शुड लुक आफ्टर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और उनके लिए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस भी बनाए गए हैं जिसके अंदर सैनिटेशन पैड्स के डिस्पेंसर्स हैं, इंसिनरेटर्स हैं. सो फॉर दिस इफ यू कैन सी हियर दैट इन अगस्त इटसेल्फ वी हैव मेड 4 डिफरेंट स्कूल्स में और गर्ल्स कॉलेजेस रुद्रपुर में और पंजाब के आनंदपुर साहिब और नवा शहर बंगा में इस तरह के बनाए गए हैं. दिस इज ऑल CSR initiative where we are trying to promote women's health. So MySakhi is the umbrella brand in which we have mysakhi.in, which is providing you the educational content, also recordings of these virtual sessions that we are holding, जिसमें कि आप लोगों को इवेंट सेक्शन में जाके जो नया आने वाला है अब नेक्स्ट वेबिनार उसके बारे में पता चलेगा और आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट वी सेंड यू द ज्वाइनिंग लिंक. और जो आज जिस तरह वेबिनार हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी पेज पर मिल जाएगी, इवेंट्स पेज पर. जैसे कि हमारा लास्ट इवेंट जो हुआ था उसका रिकॉर्डिंग भी इस पे अभी चढ़ा हुआ दिख रहा है आपको. आज के हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर बीना टंडन एंड डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू बोन हेल्थ तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. क्वेश्चन है, कैन कार्टिलेज रीजेनरेट? एकता सेठ हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, कैन कार्टिलेज रीजेनरेट? कार्टिलेज रीजेनरेट नहीं करती है, इसलिए अगर कार्टिलेज डैमेज हो तो इससे भी फिर ग्रोथ सफर करेगी बोन्स की. उसमें कुछ ऑर्थोपेडिशियन कुछ सिंथेटिक मटेरियल वगैरह डाल करके जोड़ों को लुब्रिकेट कर देते हैं. हालांकि बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं जो दी जा रही हैं राइट एंड लेफ्ट की कार्टिलेज उससे ग्रो कर जाएगा, लेकिन कार्टिलेज का प्रॉपर ग्रो होना एक उम्र के बाद संभव नहीं होता है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने कार्टिलेज को पहले ही बचा के रखें और उसके ऊपर उसको मतलब गड़बड़ ना होने दें. और आज तो हमारी प्रेसिडेंट आने वाली प्रेसिडेंट महोदया डॉक्टर अनीता शाह ने ज्वाइन कर रखा है जी. अगर हो सके तो मैडम से भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे, उनका वीडियो. I will unmute her. Also मैम, एक डॉक्टर वीना श्रीवास्तव जी जानना चाहती है, थायराइड की मेडिसिन से भी क्या डेंसिटी लेस हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है. अगर मान लीजिए जैसे अभी मैंने बताया था, पेशेंट का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप लीवोथायरॉक्सिन जो है उसको कंटिन्यूअसली खा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे पेशेंट जो है उसकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि पेशेंट जो है वो हाइपरथायरॉइड की तरफ जा रहा है और हाइपरथायरॉइडिज्म में बोन डेंसिटी कम होती है और फ्रैक्चर्स होते हैं. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. थायराइड की दवाइयां जो है वो नुकसान कर सकती हैं बोन्स को. तो बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि आप थायराइड की मेडिसिन खाना बंद कर दें. इस बात को चेकअप जो ये लाइन है डॉक्टर बीना की, इसको ध्यान दीजिए. मॉनिटरिंग इज मस्ट. और एक उम्र के बाद जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है तो आपको उतना टाइट कंट्रोल नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अब हम बात करते हैं कि हमें TSH 2.5 और 3 करना है, और उसकी जो नॉर्मल लेवल 5 है वो उसको क्रॉस करके, बल्कि बड़ी उम्र में 10 तक का TSH नॉर्मल माना जाता है. तो जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं है और हर बार आपका TSH बढ़ता नहीं जा रहा है, और कई बार बड़ी उम्र में आकर के अगर आप 200 माइक्रोग्राम खा रहे हो तो उसको 150 और 100 पे भी करना पड़ता है. इसलिए किसी भी दवाई को टॉफी की तरह खाते ना रहें, उसका बार बार
कम से कम साल में एक बार तो इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीना जी, आपका जो आपने पूछा है कि हमको कैल्शियम और विटामिन डी भी लेते रहना चाहिए चाहे हम कोई भी दवा खा रहे हो। जैसे हमने बोन फॉर्मिंग या बोन एंटी रिजॉर्प्शन वाली दवा बताई, उनमें भी कैल्शियम और विटामिन डी अगर डिप्लीट होगा तो वो दवाइयां काम नहीं करेंगी। तो कैल्शियम और विटामिन डी दो चीजें ऐसी हैं जिनका साथ बना रहना चाहिए हमारे साथ। एक छोटी सी वेलकम। चीज अगर समय हो डॉक्टर आग्ने तो मैं हाँ जी, शेयर कर लूं, जो फॉल प्रिवेंशन में रह गई थी वो। बताइए बताइए। जी, हमें अपने जो घर में बुजुर्ग हैं उनके जहां जहां वो घर में मूव करते हैं वहां शाम के समय अंधेरा नहीं रखना चाहिए। कोई डिम लाइट जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि रात को बाथरूम वाथरूम में गिरेंगे अगर अंधेरा होगा और फ्रैक्चर हो जाएगा। तो एक छोटी लाइट जरूर होनी चाहिए। एक तो ये बात है। जी, दूसरा, बुजुर्गों में कई बीमारियां होती हैं, उनकी जो दवा ली जाती है उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे डायबिटिक हैं तो एंटी डायबिटिक उन्होंने दवा है, भुलक्कड़ जाते हैं, मेमोरी कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए और गिर गए, या कान में प्रॉब्लम है, वर्टिगो हो गया गिर गए, या एंटी एपिलेप्टिक नहीं खाया फिट्स आ गया गिर पड़े। सबसे ज्यादा कॉमन है विजन के डिफेक्ट, इस एज में बहुत होते हैं। आंख चश्मा नहीं चेक कराया, रिफ्रैक्टिव एरर बदल गया है, ग्लाकोमा हो रहा है, कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है। इन सब से जब विजिबिलिटी पुअर होगी तो कोई भी गिर जाएगा, बुजुर्ग भी गिर सकते हैं। घरों में बच्चे होते हैं, उनके खिलौने इधर उधर पड़ रहते हैं, जो आपने क्लटर की बात कही, तार आर पड़े रहते हैं। तो इन सबको हमें क्लीन रखना चाहिए फ्लोर को, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑफ अ फ्रैक्चर। देयर इज नो क्योर। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेलकम। अनीता जी, आप कोई मैसेज Yeah. देना चाहेंगी? Yes, very right. Regarding thyroid, first of all, congratulations to Ragini and Beena Madam and Deepika थैंक यू, थैंक for यू। conducting such a nice webinar. Ragini, one endocrinologist had told that regarding TSH level at the age of 60, it should be 6 is normal, at the age of 77 is normal, at the age of 88, and at the age of 99. So what you told, that is very nice, that not always for higher TSH levels we should take medicine without proper consultation. And Beena madam also just nicely narrated for the preventive aspect. And in the bathroom also we should always make some handles, so that while Yes, taking bath or sitting on the stool or just getting up, they can have the support. That is also very जी very मैम, important for prevention जी, of the slipping in the bathroom, because usually that area is wet and वेट chances of sleep is very much common. And that, जी, and as we all always we are telling that just like LIC premium, we just invest in the very young age so that we can have the बेनिफिट्स proper लेकर। benefit of that in the later age. So we have to meet our adolescents, every female and male, that they should invest for their bone health in in the period of adolescence only, so that they can prevent osteoporosis in the later age of their life. यस, वेरी So राइट, थैंक यू, again, congratulations. Over to you, थैंक यू फॉर Deepika. योर इनपुट्स। Thank you, madam. Thank you. Thank you so Over much, to you, Dr. Deepika. Anita Shah, ma'am, and thank you for joining us. Next webinar is on 13th of September. Like ma'am, Dr. Ragini just told us, it is about exercises. व्यायाम से आप अपनी उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाएं. In this we have physiotherapist Dr. Shefali Gambhir with Dr. Ragini, who will be throwing light on all these exercises, which will be fit for all women who will be above 40. Thank you so very much for joining today. Thank you so much. Bye bye. फिर मिलेंगे.